الیکشن کمیشن نے پنجاب اور کے پی میں الیکشن سیکیورٹی سے متعلق اجلاس آئندہ ہفتے دوبارہ بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت پنجاب اور کے پی میں الیکشن سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں دونوں صوبوں کی سی ٹی ڈی اور حساس اداروں کے نمائندے بھی شریک ہوئے، جبکہ حساس اداروں کی جانب سے امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ بلوچستان ہائی کورٹ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے وارنٹ 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دیے۔ کچھ دیر پہلے وارنٹ لے کر کوئٹہ پولیس کی ٹیم لاہور پہنچی تھی۔ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائے کے مقدمے میں گزشتہ روز جوڈیشل مجسٹریٹ کوئٹہ نے عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شی جن پنگ کو تیسری بار چین کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی صدر شی جن پنگ کو تہنیتی پیغام میں کہا کہ انہیں آئندہ 5 سال کے لیے چین کا صدر منتخب ہونے پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کی بصیرت افروز قیادت میں چین تعلیم، صحت، زراعت، ایجادات، ٹیکنالوجی سمیت ہر شعبے میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی صدر یو این جنرل اسمبلی کاسابا کوروسی سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ ملاقات میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی شراکت سے اسلامو فوبیا سے متعلق تقریب پر بھی بات کی۔ اسلامو فوبیا سے نمٹنے کے عالمی دن کی مناسبت سے ہونے والی تقریب کا اہتمام وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کے ساتھ اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کونسل کے صدر کی حیثیت سے کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر مریم نواز نے کہا ہے کہ نواز شریف کو دوران قید زہر دیے جانے سے ان کے پلیٹلیٹس گرے تھے۔ اپنے ایک انٹرویو میں لیگی رہنما مریم نواز نے کہا کہ جب سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حالت بگڑی اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں آئے تو کچھ لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنا انہی لوگوں کی مجبوری تھی۔ کبھی نہ کبھی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس معاملے میں بھی عمران خان ملوث تھا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت کو بیک کرنے والوں سے ہمیں کوئی امید نہیں۔ قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پرسوں ہم نے الیکشن ریلی کی تاریخ کا اعلان کیا تھا۔ پولیس نے باقاعدہ ریلی کا روٹ طے کیا۔ ریلی والے دن اچانک دفعہ 144 نافذ اور راستوں پر کنٹینرز لگا دیے گئے۔ جہاں بوجھ کر ورکرز پر واٹر کین، آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ پیمرا نے ریلی دکھانے پر پابندی لگا دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے خلاف مبینہ عدلیہ مخالف بیان پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست خارج کر دی۔ عدالت عالیہ کے جسٹس شجاعت علی خان نے مقامی وکیل کی درخواست پر سماعت کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا۔ سیشن کورٹ لاہور نے وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت 20 مارچ تک منظور کر لی۔ سیشن کورٹ لاہور میں ایڈیشنل سیشن جج ندیم حسن السیر نے سڑک بلاک کرنے اور کار سرکار میں مداخلت کے کیس میں شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت پر سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت منظور کر لی اور انہیں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔
अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ात के हल के लिए सफारतकारी की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि वाशिंगटन पाकिस्तान और भारत में बामायनी मुज़ाकरात की हमायत करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुज़ाकरात के मामला तय करना अमरीका के बस में नहीं। अमरीका सालिसी का किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन सालिसी का फैसला दोनों ममालिक ने करना है। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नजर सीटीडी पंजाब की बड़ी कार्रवाई। खुफिया ऑपरेशन के दौरान लाहौर समेत 3 शहरों से 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। सीटीडी पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों की निशानदही 61 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश के दौरान की गई। लाहौर से 3 दहशतगर्दों को हिसास इलाके के करीब से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलकायदा और टीटीपी से है। पाक फौज का 23 मार्च को मुसल्लह अफवाज की रवायती परेड महदूद पैमाने पर करवाने का फैसला। ज़राए का कहना है कि फैसला मुल्क को दरपेश मुआशी चैलेंजेस और कफायत शारी पॉलिसी के तहत किया गया। ज़राए के मुताबिक 23 मार्च की परेड रवायती अंदाज में शक्करपड़ियाँ की बजाय अब ऐवान सदर में मुनक़िद होगी। ज़राए का कहना है कि रवायती परेड पर बड़े पैमाने पर अखराजात होते थे। पाक फौज मुल्क के मुश्किल वक्त में पूरी कौम के साथ खड़ी है। मुल्क की तरक्की में पाक फौज अपना किरदार अदा करती रहेगी। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की कीमत में कमी। आखिरी रोज कारोबार के आगाज में इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹2.80 कमी हुई, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी $279.50 पर ट्रेड कर रही है। आटा फिर महंगा होने का खदशा पैदा हो गया। पंजाब के महकमा खुराक ने गंदम कोटे के अजरा की कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई कीमत ₹3,400 फी मन होगी। इस वक्त फ्लोर मिल्स को ₹2,400 फी मन के हिसाब से गंदम दी जा रही है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरून इकबाल और मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपी में इलेक्शन सिक्योरिटी से मुतल्लिक इजलास आइंदा हफ्ते दोबारा बुलाने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब और केपी में इलेक्शन सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। इजलास में दोनों सूबों की सीटीडी और हिसास इदारों के नुमाइंदे भी शरीक हुए, जबकि हिसास इदारों की जानिब से अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन सिक्योरिटी से मुताल्लिक आइंदा हफ्ते दोबारा इजलास बुलाने का फैसला किया है। इजलास में वजारत दिफा और वफाकी हसास इदारों के हुकाम पर ब्रीफिंग देंगे। इलेक्शन कमीशन तमाम इदारों की ब्रीफिंग के बाद आइंदा हफ्ते इलेक्शन सिक्योरिटी से मुताल्लिक अहम फैसले करेगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और केपीके में इंतखाबात के लिए 3.5 लाख इजाफी नफरीन मांग ली। हुकाम को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब में पुलिस के अलावा 2,97,000 दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकार दरकार होंगे, जबकि केपीके में 56,000 मजीद नफरी दरकार होगी। ब्रीफिंग देते हुए हुकाम ने बताया कि दोनों सूबों में तकरीबन 67,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। पंजाब में तकरीबन 52,000 जबकि केपीके में 15,000 पोलिंग स्टेशन कायम होंगे। डीआरओ इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की निशानदही करेंगे, जबकि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन में सीटीवी कैमरों के अलावा दीगर इदारों के सिक्योरिटी अहलकार दरकार होंगे।
मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरीम नवाज ने कहा कि इमरान खान के IMF से मुआहदे ने मुल्क को मौशी बहरान में धकेला। PTI चेयरमैन मुश्किलात के जिम्मेदार हैं, पंजाब के अवाम दुश्मन को पहचान लें। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। घड़ी चोर के बारे में फैसलाबाद में घड़ी चोर का नारा सबसे ज्यादा जोरों शोर से लग रहा है। फैसलाबाद वालों, मुल्क की तरक्की में अपना बहुत बड़ा हिस्सा डालने वालों, मुल्क की तरक्की के अंदर फैसलाबाद का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसलिए मैं फैसलाबाद को पाकिस्तान का कमाने वाला बेटा कमाऊ पुत्र कहती हूँ। मुझे अभी मियां मन्नान साहब बता रहे थे कि नवाज शरीफ साहब जब फैसलाबाद आते थे तो कहते थे फैसलाबाद वालों, आपका जलसा फैसला कुन होता है। तो मैं नवाज शरीफ साहब, मैं आपका सलाम देती हूं फैसलाबाद को। और नवाज शरीफ साहब, फैसलाबाद का ना सिर्फ जलसा फैसला कुन होता है, मुझे आज पता चला कि फैसलाबाद का वर्कर्स कन्वेंशन भी फैसला कुन होता है। फैसलाबाद वालों, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपके जज्बे का शुक्रिया, आपकी शफकत का शुक्रिया। और मुझे अफसोस इस चीज का है कि खवातीन का इंक्लोजर इतनी दूर बना दिया, मुझे मेरी खवातीन नजर नहीं आ रही। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत प्यार। फैसलाबाद वालों, फैसलाबाद वालों, ये बात आप अच्छे तरीके से समझोगे कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब को हुकूमत मिली तो ना घरों में पंखा चलता था, ना फैसलाबाद में फैक्ट्रियों का पहिया चलता था, क्योंकि बिजली नहीं थी ना। 2013 में जब नवाज शरीफ को हुकूमत मिली, फैसलाबाद जानता है कि ना घरों के चूल्हे जलते थे और ना फैक्ट्रियों की चिमनियों से धुआं निकलता था, क्योंकि गैस नहीं थी। और फिर फैसलाबाद ने देखा, शेरों ने देखा, कौम ने देखा, दुनिया ने देखा कि नवाज शरीफ आ गया। ना सिर्फ नवाज। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। कोयटा की अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई के केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, जिनकी तामील के लिए कोयटा पुलिस आज लाहौर पहुंची थी। अदालत ने IG पुलिस, DIG, SP लीगल, SHO को नोटिस जारी कर दिए, जबकि अदालत ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले खलील काकड़ को भी नोटिस जारी कर दिए हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा कि चीन के अवाम और पार्लियामेंट का इत्तेमाद इनकी गैर मामूली कायदाना सलाहियतों का इतराफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीनी सदर शी जिनपिंग को तनहीती पैगाम में कहा कि इन्हें आइंदा 5 साल के लिए चीन का सदर मुंतखब होने पर पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करते हैं। सदर शी जिनपिंग चीन की तरक्की और अवाम की खुशहाली की अलामत बन चुके हैं। उनकी क़यादत में चीन दुनिया की सर फहरिस्त मौशी कुव्वत बन चुका है और यह सफ़र मुसलसल जारी है। उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग की बसीरत अफरोज क़यादत में चीन ने तालीम, सेहत, ज़राअत, इजादात, टेक्नोलॉजी समेत हर शोबे में हैरत अंगेज कामयाबियाँ हासिल की हैं। और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सदर UN जनरल असम्बली कासाबा करोसी से मुलाकात की है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर इस हवाले से गुफ्तगू भी हुई। मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान की शराकत से इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक तकरीब पर भी बात की है। इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन की मुनासबत से होने वाली तकरीब का एहतमाम वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर के साथ इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ारती कौंसिल के सदर की हैसियत से कर रहे हैं। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने आइंदा अक़वाम मुत्तहिदा की IB कॉन्फ्रेंस 2023 पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने UNGA के सदर को पाकिस्तान के मुकम्मल ताउन की यकीन दिलाया। सेशन कोर्ट लाहौर ने वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत 20 मार्च तक मंजूर कर ली। सेशन कोर्ट लाहौर में एडिशनल सेशन जज नदीम हसन वसीर ने शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने फ्रीकैन के दलाल सुनने के बाद शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली और इन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर पुलिस से रिपोर्ट भी तलब कर ली। शाह महमूद कुरैशी को 50,000 रुपये मुचलके जमा कराने की हदायत भी की है। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पंजाब में इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से टिकट्स के लिए दरख्वास्तें तलब कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों की फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने के लिए पार्लिमानी बोर्ड को भी हिदायत कर दी है। उन्होंने पंजाब में कागजात नामजदगी के लिए 14 मार्च की आखिरी तारीख का ऐलान होने के पेश नज़र अपने अपने हलकों में कागजात जमा कराने का कह दिया है। शहबाज शरीफ ने उम्मीदवारों को कहा कि अल्लाह ताला का नाम लेकर इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी करे। मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का नाम है। नवाज शरीफ की रहनुमाई में हमने हमेशा मुल्क को बहरानों से निकाला है। महंगाई में कमी, दहशतगर्दी का खात्मा, अवाम के लिए बेहतरीन सफरी सहूलियात पार्टी की पहचान है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत को बैक करने वालों से हमें कोई उम्मीद नहीं है। कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। लाहौर में वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि परसों हमने इलेक्शन रैली की तारीख का ऐलान किया था। पुलिस ने बाकायदा रैली का रूट तय किया। रैली वाले दिन अचानक दफा 144 नाफिज और रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। इन्होंने जानबूझकर वर्कर्स पर वाटर कैनन, आंसू गैस की शेलिंग की। पैमरा ने रैली दिखाने पर पाबंदी भी लगा दी। बात करें हज के हवाले से तो रवां साल 1,89,210 पाकिस्तानी फरीज़ाए हज अदा करेंगे। दरख्वास्तों की वसूली 16 से 31 मार्च तक होगी, जबकि कुरानंदाजी अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी। मजीद क्या तफसीलात हैं, आइए जानते हैं। ताहम इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मिना, मुज़दलिफा और अरफात में मशायर ट्रेन की सहूलत लेने में हम कामयाब रहे। इस सहूलत की कीमत बहरहाल हुजाज को ही बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि हुजाज को ये सहूलत हासिल होती है। गुज़श्ता साल सऊदी अरब ने महदूद तादाद में हज का इनेकाद करवाया था और हम तलब और रसद के उसूल के तहत, जो कि दुनिया में यही उसूल है, मजमूई तौर पर सस्ती सहूलियात लेने में पिछले साल हम कामयाब रहे थे। इस साल तमाम ममालिक अपने मुकम्मल कोटा के साथ हुजाज को सऊदी अरब भिजवा रहे हैं। पाकिस्तानी हुजाज को भी मुकम्मल मुल्की कोटा के साथ ये सआदत नसीब होगी। इसलिए तमाम ममालिक के माबैन अच्छी रिहाइशगाहों और बेहतर सहूलियात के हुसूल की मुसाबकत है, मुकाबला है सबके दरमियान। तकरीबन 53 ममालिक या इससे ज्यादा
اور نیز مدینہ منورہ میں حرم کی توسیع پروجیکٹ بلکہ مکہ مکرمہ میں کاکیہ کا سارا علاقہ جو ہے وہ گرا دیا ہے. اسی وجہ سے یہ وہاں رہائش کے حوالے سے بہت بڑا پرابلم پیش ہو رہا ہے. تو اسی توسیع پروجیکٹ حرمین شریفین کی توسیع پروجیکٹ کے باعث کافی رہائش گاہوں کو خالی کرانے اور گرانے کا سلسلہ شروع ہے. ان تمام امور نے سہولیات کی قیمتوں میں مجموعی طور پر اضافہ کیا ہے. ان سب عوامل کے باوجود سمندر پار پاکستانیوں کو بیرون ملک کی نسبت پاکستان سے حج کرنا کم قیمت پڑتا ہے. یہ عجیب بات ہے. یہاں تو ہمارے اس پہ کوئی شک نہیں کہ حج پیکج بہت یعنی بظاہر مہنگا، تو اس پہ کوئی شک نہیں نظر آتا ہے. لیکن جو بیرونی دنیا میں پاکستانی مقیم ہے اس کو سب سے سستا پاکستانی پیکج نظر آتا ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے دنیا کے پیسوں میں وہ غور کرتا ہے. اسی وجہ سے ان کا دلچسپی یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستانی پاسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے یہاں سے حج کرائے. یہ الحمدللہ پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے. پھر بھی امسال سرکاری حج اسکیم کے اخراجات خطے کے دیگر ممالک مثلا انڈیا، بنگلہ دیش اور افغانستان سے کم ہیں. مثلا انڈیا سے حج اخراجات پاکستانی روپیہ کے حساب سے 13.5 لاکھ سے متجاوز ہیں. اسی طرح بنگلہ دیش ہے اور افغانستان کی بھی. بہرحال افغانستان کا چونکہ کرایہ نسبتاً کم ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ وہاں کے حوالے سے الحمدللہ ہم اس سے آگے ہیں. اس حوالے سے نیز گزشتہ سال کے حجاج کرام اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان کی سرکاری حج اسکیم کا معیار مذکورہ ممالک کے حجاج کو میسر سہولیات سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور لوگ آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کا 23 مارچ کو مسلح افواج کی روایتی پریڈ محدود پیمانے پر کروانے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے کہ فیصلہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز اور کفایت شائی پالیسی کے تحت کیا گیا. 23 مارچ کی پریڈ روایتی انداز میں شکر پڑیاں کی بجائے اب ایوان صدر میں منعقد ہوگی. ذرائع کا کہنا ہے کہ روایتی پریڈ پر بڑے پیمانے پر اخراجات ہوتے تھے. پاک فوج ملک کے مشکل وقت میں پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہے. ملک کی ترقی میں پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کے خلاف مبینہ عدلیہ مخالف بیان پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست خارج کر دی. عدالت عالیہ کے جسٹس شجاعت علی خان نے مقامی وکیل کی درخواست پر سماعت کی. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کر دیا. سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ نگران حکومت پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے. جو کچھ لاہور میں تشدد ہوا یہ اس کا دفاع کرتے رہے. پاکستان میں کوئی ایسی دفعہ 144 خونی نہیں ہوئی جس کا پرچہ پولیس کی مدعیت میں کٹا ہو. پولیس نے علی بلال کی شہادت کا مقدمہ اس کے والد کی بجائے پولیس کی مدعیت میں درج کیا، جو مستقبل میں نگران حکومت کے گلے پڑے گا. سابق وزیر کا مزید کہنا تھا کہ شہباز اور زرداری نے الیکشن امیدواروں سے درخواستیں طلب کر لی ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کی عزت پاکستان میں جمہوریت کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. الیکشن سے فراریوں کو سپریم کورٹ کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن پاکستان اور بھارت میں بامعنی مذاکرات کی حمایت کرتا ہے. واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران امریکی وزیر خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے معاملات طے کرنا امریکہ کے بس میں نہیں. امریکہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کو تیار ہے، لیکن ثالثی کا فیصلہ دونوں ممالک نے کرنا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ بھارت اور پاکستان کے تنازعات کے حل کے لیے سفارتکاری کی حمایت کرتے ہیں اور ہم اس عمل کی ہر طرح سے حمایت کرتے رہیں گے. تاہم یہ وہ فیصلے ہیں جو دونوں ممالک کو خود کرنا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ عمران خان ملک کو ڈیفالٹ تک پہنچا چکے ہیں. ہم پاکستان کو مشکل حالات سے نکال کر دکھائیں گے. مریم نواز نے جو بیانیہ دیا وہ بہت کلیئر ہے. لوگوں کو نااہل کیا گیا، لاڈلے کے لیے ماحول بنایا گیا اور مقبول بھی کیا گیا. انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ مہنگائی کی وجہ ہے جو عمران خان نے کیا. معاہدے کی تکمیل نہ کریں تو ڈیفالٹ ہوتے ہیں، معاہدے کی تکمیل کریں تو مہنگائی ہوتی ہے. طلال چودھری نے کہا کہ گیدر اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے. ہم نے دہشت گردی ختم کی، کراچی کا امن لوٹایا.
दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई। खुफिया ऑपरेशन के दौरान लाहौर समेत 3 शहरों से 12 दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। CTD पंजाब के मुताबिक दहशतगर्दों की निशानदही 61 मुश्तबा अफराद से तफ्तीश के दौरान की गई। लाहौर से 3 दहशतगर्दों के हसास इलाके के करीब से गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों का ताल्लुक अलकायदा और TTP से है। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद किया गया। दहशतगर्दों के नेटवर्क हिसास इस्लाम में तखरीब कारी करना चाहते थे। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। CTD हुकाम का मजीद कहना था कि रवा हफ्ते 797 कोम्बिंग और सर्च ऑपरेशन किए गए। इन ऑपरेशन के दौरान 159 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पेशावर में पुलिस की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। DSP गुलबहार शकील खान की क़यादत में सिटी ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर गुलबहार में खुसूसी मशक की गई, जिसमें DSP गुलबहार शकील खान, SHO गुलबहार रफीक खान, RRF कमांडोज, एलीट फोर्स, सूंघने वाले कुत्तों और मुकामी पुलिस ने हिस्सा लिया। फर्जी मश्क में एमरजेंसी वाक़े से बरवक्त निपटने का मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर सिटी ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर गुलबहार की बिल्डिंग का मुहासरा करके अमले को बाहिफाजत मुंतकिल और दहशतगर्दों से इलाके की सफाई की ट्रेनिंग भी की गई। रमजान के आगाज से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन गर्मी मामूल से ज्यादा होगी। अलबत्ता 12 मार्च के बाद बेहतरी आ जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च के आखिरी दिनों में मुल्क भर में बारिश हुए, जबकि रमजान का दूसरा और तीसरा अशरा निस्बतन गर्म रहने का इम्कान है। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि रमजान के आगाज से मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू होने की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन गर्मी मामूल से ज्यादा होगी, अलबत्ता 12 मार्च के बाद बेहतरी भी आ जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मार्च के आखिरी दिनों में मुल्क भर में बारिश होने का इम्कान है, जबकि रमजान का दूसरा और तीसरा अशरा निस्बतन गर्म रहने का इम्कान है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि रमजान उल मुबारक से कबल ही फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा जारी। लाहौर में प्याज 150 रुपए, भिंडी 240, करेले 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। टिंडे 80 रुपए, लौकी भी 80 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। फलों की कीमतों को देखा जाए तो मार्केट में सेब 290 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 260 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। खरबूजा 165 रुपए किलो और केला 250 रुपए दर्जन फरोख्त होने लगा। चिनार बाग हाउसिंग सोसाइटी रायवन में इत्तेहाद ग्रुप के ज़र एहतमाम जश्न बहारा के सिलसिले में वॉक का एहतमाम किया गया। वॉक में मुकामी अफराद ने जोश खरोश से हिस्सा लिया, जिसमें खवातीन के साथ साथ बच्चों की कसीर तादाद भी शरीक थी। वॉक के दौरान शुरका ने कॉलोनी की सफाई की और मस्जिद के लिए अलामती तौर पर एक दरख्त भी लगाया। इस मौका पर इत्तेहाद ग्रुप के सदर, नायब सदर और सेक्रेटरी फाइनेंस के उम्मीदवारों ने रिहायशियों में शजरकारी और सफाई की अहमियत पर रोशनी डाली। खवातीन की नुमाइंदा प्रोफेसर ज़ीबा नईम ने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कॉलोनी के मकीनों के अंदर हिफ्ज़ान सेहत की बुनियादी असूलों का शऊर पैदा नहीं होगा, तब तक कोई भी अपने बुनियादी मसाइल हल नहीं कर सकेगा। तारिक बाजवा ने इस अज़म का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले इलेक्शन में इनका ग्रुप जीतने के बाद इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से चिनार बाग में तरक्याती काम शुरू करेगा। वॉक में शरीक रिहायशियों ने इत्तेहाद ग्रुप के साथ यकजहती का इजहार किया और इनके मसाई को सराहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत उस्मा के हुक्म पर 10 अप्रैल को होने वाले पंजाब असम्बली के इंतखाबात में मुतफ़िका तौर पर इजलास में रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी से 297 रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए गए, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेसी से 594 असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए गए। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालत उस्मा के हुक्म पर 10 अप्रैल को होने वाले पंजाब असम्बली के इंतखाबात में मुत्तफिका तौर पर इजलास में रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी से 297 रिटर्निंग अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। म्यू अस्पताल के ब्लड बैंक में इंतजामात बारे MS म्यू अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक का खसूसी दौरा, लैब समेत दीगर मुकामात का मुआयना किया गया। MS म्यू अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक ने इस मौका पर हाजिरी रजिस्टर समेत अमले की ड्यूटियां चेक की और मरीजों से ब्लड बैंक की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात बारे पूछा। ब्लड बैंक में आए मरीजों और तीमारदारों ने तमाम सहूलियात फ्री मिल रही हैं, इस हवाले से उनको आगाह किया। आपको इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि म्यू अस्पताल के ब्लड बैंक में इंतजामात बारे MS म्यू अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक का खसूसी दौरा, लैब समेत दीगर मुकामात का मुआयना किया। MS म्यू अस्पताल डॉक्टर मुनीर मलिक ने इस मौका पर हाजिरी रजिस्टर समेत अमले की ड्यूटियां चेक की और मरीजों से ब्लड बैंक की जानिब से दी जाने वाली सहूलियात बारे आगाह किया। ब्लड बैंक में आए मरीजों और तीमारदारों ने तमाम तर सहूलियात बारे आगाह किया कि हमें तमाम तर सहूलियात फ्री मिल रही हैं। जश्न बहारा के सिलसिले में 7 रोज़ा तकरीबात, महाफिल समा और सूफी रंग के छठे रोज़ दरबार हजरत सखी तुरत मुराद बाग जिना लाहौर में महफिल समा का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात सलमान शाह की इस रिपोर्ट में। जश्न बहारा के सिलसिले में 7 रोज़ा तकरीबात, महफिल समा व सूफी रंग के छठे रोज दरबार हजरत सैयद सखी तुर्त मुराद रहमतुल्लाह अलैह बाग जिना लाहौर में महफिल समा का इनेकाद किया गया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासरी शाह ने कहा कि जश्न बहारा में महफिल समा व सूफी रंग का इनेकाद लायक तहसीन है। हमारे कदीम त्योहारों में से जश्न बहारा और मेला चरागा का त्यौहार बहार के मौसम से मंसूब है। उन्होंने मजीद कहा कि सूफिया ने खित्ते की तहजीबी और सकाफती रवायात को रवादारी और इंसानी दोस्ती से रोशनास करवाया और बरसगीर में सबसे बड़े समाजी इनकलाब की बुनियाद रखी। फलाही माशरे की तश्कील के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए खानकाही निज़ाम का आयाज जरूरी है। सूफिया बैनुल मसालक, हम आंगी और बैनुल मज़ाहिब मुकालमा की तरवीज के अलंबरदार और शर्फ आदमियत और तकरीम इंसानियत के अमीन थे। उन्होंने मजहब व मसलक और रंग व नस्ल की तकसीम से बातर होकर इंसानियत की खिदमत की और उन्हें अजमत से सरफराज किया। सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने कहा कि समा बरसगीर की खानकाही रवायात में मुमताज मकाम की हामिल और आम आदमी के लिए सुकून कल्ब और रूहानी तवानियत का जरिया है। पंजाब गवर्नमेंट ने जश्न बहारा की मरकजी तकरीबात में महफिल समा और सूफी रंग को शामिल करके मुस्तहसन कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत की किफायतशारी और खुद निसारी की पॉलिसी जश्न बहारा की तकरीबात के लिए सूबाई खजाने से किसी किस्म का बजट का ना लेना भी एक मुस्तहसन फैसला है। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन औकाफ आसिफ हिजाज, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ लाहौर शाहिद हमीद बिग, खतीब दाता दरबार रमजान सयालवी, सूबाई खतीब औकाफ मौलाना मुख्तार नदीम, जोनल खतीब औकाफ मुफ्ती करीम खान, मैनेजर औकाफ मोहम्मद काशिफ, मैनेजर औकाफ मोहम्मद जमील, ज़ली खतीब औकाफ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि भवाना में इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो के बाद शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। जगह जगह कूड़े क्रिकेट और गंदगी के ढेर लग गए। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की रिपोर्ट पे। जी बिल्कुल, भवाना इंतजामिया और म्यूनिसिपल कमेटी की अदम तवज्जो की वजह से शहर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया, जबकि हर जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, जबकि शहरी तफून ज़दा माहौल में रहने पर मजबूर हो गए हैं। इस हवाले से शहरियों को कहना है कि शहरियों के साथ हमेशा सुतैलो जैसा सलूक किया जाता है। हर गली मोहल्ले बाजार में कूड़ा करकट गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। तफून फैलने से सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, जबकि मच्छरों की बतौत है और बीमारियाँ फैलने का खदशा है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उससे बात करते हैं। जी, इंतज़ामिया को कुछ शर्म करनी चाहिए। भाई हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं और भवाना भी पाकिस्तान के नक्शे पे है, तो हमारे लिए ये हमसे ये सौतीला सलूक क्यों किया जा रहा है? म्यूनिसिपल कमेटी की तरफ से कोई बंदा इधर काम पे नहीं आता
हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं, फ़ोटो सेशन भी करके डीसी साहब को भी भेजा है और म्यूनसिपल कमेटी भी काफ़ी दफ़ा गए हैं। तो उन्होंने सियासी भर्तियां की हुई हैं, वो कॉटन और लट्ठा पहन के आते हैं और वो लड़के रखे हुए हैं, वो MA BA पढ़े हुए। अब ये नई सियासी भर्तियां की हैं तो बुआने का माहौल इस वजह से बहुत ज़्यादा गंदगी फैल चुकी है, जगह जगह गंद के ढेर लगे हुए हैं और काफ़ी दफ़ा कह भी चुके हैं। अब हमारा क्या कसूर क्या है, ये हुकूमत वक्त से हम पूछते हैं कि हमारा कसूर बताएं, DC साहब बताएं, AC साहब बताएं भाई हमने क्या कसूर किया है। भाई ये तनख्वाहें भी हमारे पैसों से जाती हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, तो तनख्वाहें भी पे करते हैं इस काम की। और ये देखें ज़रा माहौल देखें पीछे पे क्या बना क्या पड़ा है, ये पूरे बुआना में ये माहौल बना पड़ा है। और मेहरबानी करें हमारे हाल पे कुछ रहम करें। आज रेशो देख लें अस्पताल में जाके भी, इस वजह से बीमारियां कितनी फैल रही हैं। उकाड़ा पुलिस ने डाकुओं से बरामद होने वाला 1.25 करोड़ का सामान असल मालिकान के हवाले कर दिया। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद भी किया गया जिसके मेहमान खुसूसी RPO साहिवाल महबूब रशीद थे। मजीद जानते हैं आदिल रशीद की इस रिपोर्ट में। तैयब सही शहीद पुलिस लाइन्स उकाड़ा में बरामद शुदा मालो मसरूका हवालगी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमाना ने एजाज RPO साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद थे, जिन्होंने DPO उकाड़ा कैप्टन रिटायर्ड मंसूर अमान के हमरा मिलकर बरामद शुदा माल मसरूका असल मालकान के हवाले किया। 2 माह में उकाड़ा पुलिस ने शानदार कारकर्दगी करते हुए 11 मुनज़्ज़ब गैंग्स के 34 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया और 119 संगीन मुकदमात ट्रेस किए, जिनमें 1,84,07,000 रुपए का बरामद शुदा माल असल मालकान के हवाले किया। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से ई-गैजेट एप्लीकेशन के जरिए 70,48,439 रुपए मालियत के 229 अदद मोबाइल फोन बरामद किए गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर साहिवाल डिवीजन महबूब रशीद ने कहा कि कत्ल, डकैती और राहजनी जैसी संगीन नौयत की मुकदमात में मुलव्वस जराइम पेशा अनासर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए जो पुलिस अफसरानों मुलाजमीन शब रोज मेहनत करते हैं, वो यकीनी तौर पर पुलिस फोर्स और माशरे के लिए किसी सरमाए से कम नहीं। इंतहाई कलील अरसे में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पुलिस ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया। न सिर्फ मुतअद्दिद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया बल्कि इनके कब्जे से अवामुन नास की लूटी हुई खून पसीने की कमाई भी बरामद करके उनको वापस दी। 2 माह में एक पुलिस मुकाबला हुआ जिसमें एक डाकू दौरान इलाज हलाक हुआ, जबकि मुल्जिमान से भारी तादाद में असला भी बरामद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उकाड़ा मंसूर अमान ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान के लिए नकद इनाम और तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान भी किया। टीम के साथ चौधरी अदील। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सवात में पिछले दिनों सैलाब ने लोगों के सरों से छत छीन ली। बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए। फलाही तंजीम अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट ने 20 घर तमीर करके मुतासिन के हवाले कर दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मोहम्मद इब्रार हुसैन की रिपोर्ट में। स्वाद में हालिया सैलाब ने मदियन की गांव इंगराबाद को बुरी तरह मुतासिर किया था। कई घर दरिया में बह गए थे और लोग बेसरो सामान की जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। ऐसे में फलाही तंजीम ने इनके लिए घर बनाकर इनकी चाबियां मालिकान को हवाले कर दी, जिस पर वो काफी खुश है और फलाही तंजीम का शुक्रिया अदा किया। सैलाब ने हमारे 3 घर को मुकम्मल तबाह बर्बाद कर दिया था। इसके बाद अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट टीम आई, यहाँ का मुआयना किया और उसने फिर हमारे लिए 2 कमरे बनाई और हम इससे मुतमईन हैं। उन्होंने फूड पैकेज दिया यहाँ पे। फिर चेयरमैन साहब ने यहाँ पे दौरा किया तो हमने उनको समझाया कि यहाँ पे घर बह गई है दरिया में, तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने मान लिया। 1-2 महीने बाद उन्होंने फिर विजिट किया और फिर उन्होंने 20 घर हमसे जो वादा किया आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देख रहे हो बनाई। मैं अल मुस्तफा ट्रस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसने हमारा अफसर अफजाई के लिए हमें
घर बना कर दिया है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा मटेरियल लगाया, अच्छा काम किया। मेरा नाम हाफिज़ादा जवाद अहमद है। एक बेहतरीन एक मॉडल घर है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह के फजल व करम से वो काम आज अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम पजीर हो गया है और लोग अपने घरों पर शिफ्ट हो गए हैं। तंजीम की कोऑर्डिनेटर अखुंदजादा जवाद ने बताया कि इनकी तंजीम ने फेज में 2 कमरों का एक किचन और वॉशरूम पर मुश्तमिल 20 घर तामीर की है। हुकूमत ने सैलाब में मुकम्मल तबाह होने वाले अफराद को 4 लाख रुपए दी है, जबकि इस तंजीम ने इनकी दोबारा तामीर करके इनकी दिल जीत ली है। कैमरामैन मोहम्मद शेख के साथ। आपको बताएं कि बरतानिया भर में बर्फानी तूफान के अलर्ट बरकरार है। वेल्स में बर्फानी के बायस 100 से ज़ायद स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों को कुतुब शुमाली से आने वाली बर्फानी तूफान का सामना है। सर्दी की शदीद लहर बरकरार है। स्कॉटलैंड के इलाके आल्टन हारा में दर्जा हरारत -16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। रिपोर्ट्स में बताया गया कि बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में जुम्मे की सुबह तक बर्फबारी जारी रहने का इम्कान है। इंग्लैंड के वस्ती और शुमाली इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फबारी मुतवक्की है। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के एक चर्च में फायरिंग से 7 अफराद हलाक और 25 अफराद जख्मी हो गए। जर्मन मीडिया के मुताबिक मुसल्लह शख्स ने चर्च के ऊपरी मंजिल पर जाकर वहां मौजूद शहरियों पर फायरिंग कर दी। मुकामी पुलिस का कहना है कि मुलजिम के चर्च से फरार होने की इत्तला नहीं मिली। तवक्को है कि हमलावर भी हलाक अफराद में शामिल है। फायरिंग की वजूहात ताहाल मालूम ना हो सकी। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। गैर मुल्की मीडिया का कहना है कि फायरिंग का वाक़या ग्रोस बोर्स्टल डिस्ट्रिक्ट में पेश आया। फायरिंग के बाद पुलिस ने शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।